Hello, my dear students. A very warm welcome once again to a beautiful chapter named as Equilibrium. I'm your host and teacher, Manjot Singh. Now, in the previous video, we were talking about a very interesting phenomena that was nothing but ionization constant of water, Kw, right? And we talked about that Kw is nothing but concentration of H3O plus into concentration of OH minus. At any given temperature, this remains constant. That means if concentration of H3O plus is increasing at that temperature, then the concentration of OH minus will decrease such that the Kw value remains constant, and at 25 degrees Celsius we saw that Kw value is 10 to the power minus 14. So this was the result, which was very important and very interesting, and we told you that if any of one of the concentrations is known to you, then you can find out the concentration of the second ion. That is, if H plus ion concentration is known to you, you can find out the OH minus by dividing H plus by Kw. So that result basically was utilized, and this result was simplified, or I would say it was modified to calculate the concentration of H plus ions in the solution. That is, it was used to give the power of H plus ions or the potential of H plus ions. And when this formulation was done, it was found that we reached to a very beautiful scale. And I suppose every one of you remember this from your previous classes. Sir, ये तो pH scale है, right? 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 7 तक सर एसिडिक होगा, और 7 से लेके 14 तक सर बेसिक होगा. अगर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सोल्यूशन का pH 7 से 14 के बीच में है, it is basic solution. If it is between 0 to 7, it is acidic solution, which you have done in your previous classes, right? So today's topic is going to be pH and pH scale. और ये pH क्या है? What is this pH? This pH was basically discovered or defined, or I would say formulated by a very famous scientist. His name is nothing but Sorensen. इनका नाम क्या है? सोरेंसन. सो सोरेंसन भाई साहब ने 1909 में देखो वो कुछ काम कर रहे हैं, वो बस सोल्यूशन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, उनके पीएच के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं, लिटमस पेपर से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है सोल्यूशन. सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट, दैट कैन वी फॉर्मुलेट दिस. क्या हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं? अगर मुझे पता है कि एक ग्लास पानी के अंदर मैंने 10 to the power minus 1 molar HCl डाला हुआ है, so what would be the concentration of H plus ions over here? Yes, that is what he helped us to formulate, and in doing so he brought about a scale was known as pH scale, which goes from 0 to 14. यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा स्कैम हुआ है. स्कैम तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ थोड़ा सा यहाँ पर जो 10th स्टैंडर्ड तक आपको खाली बता दिया जाता है कि ये स्केल 0 से लेके 14 तक है, बट दैट इज नॉट ट्रू. उसी के लिए सोरेंसन भाई साहब बोले मेरी बात को ध्यान से सुनो. वो बोले कि हमें पता है कि Kw इज इक्वल्स टू क्या होता है? concentration of H plus into concentration of OH minus. वो बोले कि भाई इस इक्वेशन के अंदर टेक माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स, माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो जब दोनों साइड पे माइनस लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Kw इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ, ब्रैकेट में जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन, राइट? अब Kw का वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या है?
10⁻14 हमें पता है। बट अभी के लिए मैं बोलूंगा कि इसको माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू रहने दो, और मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसको माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू रखा, यहां पर मैंने लॉग का एक प्रॉपर्टी लगाया, लॉग ऑफ ए इंटू बी इज नथिंग बट लॉग ए प्लस लॉग बी। थर्मोडायनामिक्स में आपको लॉग का वीडियो देखने के लिए बोला गया था। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट प्लीज डू दैट, ताकि आप आज की क्लास में अच्छे से बढ़िया से समझ पाओ कि ये क्या हो रहा है, राइट। सो यहां पर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस प्लस इंटू है ना, प्लस माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस, ऐसा लिख सकता हूं मैं, राइट। आई कैन राइट डाउन दिस वे, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस प्लस माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस, और ये जो माइनस लॉग है ना यहाँ पर, माइनस लॉग बेस 10, इसी को तो सोरेनसन भाई साहब ने बोला कि भाई इसको मैं बोलूंगा P, क्या बोलूंगा? P, where he denoted this P as mathematical operator, simply mathematical operator which gives, P से क्यों उन्होंने P नाम दिया, which gives the power of whatever is there in the bracket। मतलब अगर यहाँ H प्लस है तो ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस दे रहा है पावर ऑफ H प्लस आयंस इन द सोल्यूशन। अगर ये माइनस लॉग ऑफ OH माइनस है तो ये मुझे दे रहा है पावर ऑफ OH माइनस आयंस इन द सोल्यूशन। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब देखो, यहां पर अगर मैं माइनस लॉग को मैथमेटिकल ऑपरेटर से रिप्लेस करूं तो ये इक्वेशन हो जाती है पी के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ओ एच, पी एच प्लस पी ओ एच, स्मॉल पी, हाँ कैपिटल पी मत लिख देना इसको, दिस इज स्मॉल पी। तो भाई साहब पी के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ओ एच, करेक्ट। और वो तो बात सही भी है, के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो एच प्लस इंटू ओ एच माइनस के इक्वल होती है ना, तो लॉग लेने पे वो इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग लेने पे वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इन न्यूट्रल सॉल्यूशंस पीएच इज इक्वल्स टू पीओएच, तो क्या मैं लिख सकता हूं पी के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पीएच डिवाइडेड बाय पीएच टू पीएच, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, टू पीएच, क्योंकि पीएच इज इक्वल्स टू पीओएच फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो पीएच की वैल्यू देखो क्या आ गई, पीएच की वैल्यू आ गई पी के डब्ल्यू बाय 2। अब यहीं से मैं आपको वो स्कैम बताने जा रहा हूं। आपका जो स्केल 0 से 14 है वो सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे वैलिड है। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमें पता है कि के डब्ल्यू का वैल्यू चेंज होगा, और अगर के डब्ल्यू का वैल्यू चेंज होगा तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट चेंज होगा, मिड पॉइंट भी चेंज होगा, और अगर के डब्ल्यू का वैल्यू चेंज होगा तो आपका फाइनल स्केल जो है वो 14 नहीं, वो या तो 13 या तो 12 या तो 11, या फिर अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो उस हिसाब से वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी है यहां पर, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा हूं तो इस इक्वेशन को मैं यहां हाईलाइट कर रहा हूं, अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात है तो मेरा के डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 10⁻⁻14, राइट। दिस इज इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ओ एच, सामने वाला यही रहने दिया, पी के डब्ल्यू को मैंने लिख दिया माइनस लॉग के डब्ल्यू। अब मैं लॉग की एक दूसरी प्रॉपर्टी लॉग ऑफ ए टू द पावर एन, इसको मैं लिख सकता हूं एन लॉग ए, मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो ये माइनस और ये माइनस, देखो -1 इंटू -14 लॉग ऑफ 10 बेस 10, तो ये वैल्यू तो क्या होती है 1, पी एच प्लस पी ओ एच, सो वी गेट द इक्वेशन पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल्स टू 14। इसीलिए स्केल जाता है 0 से 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि मैंने यहां पर एट 30 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू का वैल्यू देखूंगा वो आएगा 10⁻12 लेट से, तो माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू
इज इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ओ एच, के डब्ल्यू का वैल्यू डालो, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 12 इज इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ओ एच, वैल्यू आ गई पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल्स टू 12। मतलब अब जो स्केल जाएगा वो 0 से 12 जाएगा, वो 0 से 12 जाएगा इंस्टेड ऑफ 0 टू 14, बिकॉज एट 30 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू का वैल्यू वॉज फाउंड टू बी 10 टू द पावर माइनस 12, और इन दोनों के एडिशन से हमें के डब्ल्यू का वैल्यू मिलना चाहिए था, राइट। सो बेसिकली दिस इज व्हाट सोरेनसन सॉर्टेड एंड दिस इज व्हाट ही गेव इक्वेशन एज कि भाई अगर आपको सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ढूंढना है तो आप सोल्यूशन का pH कैलकुलेट करो। और pH को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? pH को उन्होंने बोला दिस इज नथिंग बट माइनस log of H plus ion, that is it is the negative logarithm of H plus ion concentration in the solution, correct, perfect, simple। तो बस उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को एक खुशखबरी देंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे रहने वाले हैं। सो नो नीड टू वरी, आपके लिए pH प्लस POH का वैल्यू 14 ही रहने वाला है। तो स्कैम तो नहीं बोलूंगा इसको, मैं इसको ये बोलूंगा कि बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शॉर्ट रखा हुआ था, वो इंफॉर्मेशन को हमने 11th स्टैंडर्ड में एक्सपैंड कर दिया कि भाई साहब अगर आपको pH का स्केल डिफाइन करना है तो pH का स्केल गोज फ्रॉम 0 टू pKw और हाफ जाता है pKw/2। अब अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं तो KW की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14, तो ये वैल्यू हो जाएगी 14, ये वैल्यू हो जाएगी 7, ये हो जाएगा 0। बट अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0। करेक्ट, सिंपल, इजी, वेरी वेरी इजी, परफेक्ट। सो दैट इज बेसिकली द मैजिक ऑफ दिस इक्वेशन कि भाई स्केल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 14 नहीं, वो 0 से pKw होती है। सो दिस इक्वेशन ओवर है जो मैंने ये स्क्वायर में डाली हुई है, ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने के लिए, नॉलेज के लिए। एंड फाइनली दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन to sort your questions, to solve your questions, correct, simple। अब pH और pH के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल वाले, बहुत चिंदी, बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस। We will talk about that in your live classes, but before going, let's define pH for you। Definition of pH is nothing but the pH of the solution is defined as the negative logarithm of H3O plus or H plus ion concentration in moles per liter, करेक्ट। मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने जाएंगे तो ये हो जाएगा pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस और माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। बोथ द थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम। H प्लस आयन्स जब सोल्यूशन में होते हैं तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके एक्चुअली में H3O प्लस बना के रहते हैं रादर देन स्टेइंग एज H प्लस, इसीलिए हम जनरली H3O प्लस बोलते हैं, नॉट H प्लस। तो जब आप अपने एग्जाम्स में डिफाइन करेंगे तो यू विल राइट डाउन ओवर हेयर एज H3O प्लस ओनली, नॉट H प्लस, ठीक है। बोलने के लिए हम बोल सकते हैं लेकिन एग्जाम में प्लीज उसको डिफाइन ना करिएगा। सो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपको पता चला है कि भाई एक सोल्यूशन का जो pH और उसका जो POH का वैल्यू होता है वो इक्वल टू pKw होता है, नॉट 14। 14 कब होगा? 14 होगा सिर्फ और सिर्फ जब सर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर टेम्परेचर नहीं दिया है तो आप ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर लोगे, इसी को हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं, जहाँ पर 25 डिग्री स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है बट स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलते हैं। दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर जिसके ऊपर जनरली मोस्ट ऑफ द काम होता है। Is that clear? So this is very very important. So please note this down. Note the down equation of pH.
अगर आपने लॉग की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ क्लास में आने से पहले वो भी वीडियोस देख के आइएगा। आपके थर्मोडायनेमिक्स सेक्शन में वो अपलोडेड है, लॉग एंड एंटी लॉग दोनों वीडियोस मैंने अपलोड किया है, बिकॉज आज की क्लास हम डेडिकेट करेंगे पीएच के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। करेक्ट? So what we'll do is we'll concentrate more on numericals by overviewing the topic. We'll meet up in the regular class. Till then, please take care of yourself. Bye bye.